First of all, uh, thank you to UPSC Time, and I think this is a very wonderful collaboration for someone like me who has had no peers while preparing for the examination, who were also preparing for the UPSC examination. I often resorted to these topper talks that are available on YouTube to seek guidance, to get a preparation strategy. So I think such kind of platforms are very useful for the aspirants to have a comprehensive strategy, and basically these are luminary to how we can ease the way in which we are preparing. It basically makes the UPSC journey, which seems so onerous, it makes it seem quite achievable and possible. So yeah, I'll now start with the preparation, because there is a paucity of time and we are already starting late. I will now jump right into the preparation, starting from the prelims. First of all, I took 1 year, that is 2017, to take my coaching classes. During that time, I took coaching for both general studies and for my optional. After that, in 2018, I actually started the proper self study. So, now what comprises of this self study? I'll just get into that. Okay, so yeah, first of all, for prelims, I hope I'm audible, and so I'll get into the prelim strategy. First of all, for prelims, there are a few areas, for example, the mock test, the static portion, and the current portion, and all three have to be prepared side by side. So, starting with the mock test, I think be it Insight or Vision or any kind of such coaching academies, they provide really good mock test options. What I have done during my prelims preparation was that I took about 30 to 40 test series, and approximately 25 and 30 I have solved myself in the time duration that is given, which is 2 hours. And for the rest 10 to 15 mock test मैंने खुद थोड़ा सा आंसर्स देख के उनको सॉल्व किया. After that, during the 2-3 months before the prelims, I have revise these 30 to 40 test series again and again and again. तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा मेरी प्रिपरेशन का. अदर देन दैट, जो सेकेंड पॉइंट है विच इज़ न्यूज़पेपर रीडिंग, ये मैंने अपने प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी में थ्रू आउट किया है. ये पूरा साल 1.5 साल जब तक मैं प्रिपरेशन कर रही थी, न्यूज़पेपर रीडिंग वॉज अ पार्ट ऑफ माई हैबिट. Every day early morning I would read both Indian Express and Hindu. During the last 2 months before the prelims, I stopped reading the newspaper. Instead, I focused on consolidating all the current affair notes that I had made and that were available in the market. आपको किसी भी अच्छे कोचिंग सेंटर के करंट अफेयर्स के कंसोलिडेटेड नोट्स मिल सकते हैं. बी इट विजन, बी इट इनसाइट, बाजीराम एंड रवि, देयर मैनी कोचिंग सेंटर्स. वो लोग मंथली करंट अफेयर्स निकालते हैं, एंड आप उन्हें अगर पढ़ेंगे तो यू विल बी एबल टू क्रिएट दोज कंसोलिडेटेड नोट्स दैट आर रिक्वायर्ड. और ये आप सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी, एनवायरमेंट, एट्सेट्रा. Then comes the static portion. Static portion के लिए lot of serious aspirants already know there are defined books in the market. For example, for polity there is Lakshmikant. For economics there is Shriram. There is Shankar for environment. And TN board के लिए TN board ancient history का काफ़ी अच्छा comprehensive material देता है. फॉर मॉडर्न हिस्ट्री देयर इज स्पेक्ट्रम. तो ये आपका स्टैटिक पोर्शन होता है. ये आप साल जब आप अपना देते हैं यूपीएससी का, उसमें प्रिपेयर तो करते ही हैं, एंड इसी को आप रिपीटेडली रिवाइज करते हैं. तो अब आपके ये जो 3 एरियाज होते हैं प्रीलिम्स में, बी इट द मॉक टेस्ट विच यू विल रिवाइज, and be it the newspaper and making those consolidated current affair notes, and finally your static portion. So this is how one prepares for the preliminary examination. Now coming to the second part of the examination, which is the mains. Mains में again
we will divide these into different categories. First of all, there is your static portion. Again, फॉर स्टैटिक पोर्शन आप अपना सिलेबस देखते हैं. सिलेबस में आप ये देखते हैं कि हर टॉपिक क्या है. टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बहुत सारे कोर एरियाज़ को कवर करेंगे, खुद नोट्स बनाएंगे. फॉर एग्जांपल, इट कैन बी एनी टॉपिक. इट कैन बी अ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री विच इज़ गिवन इन GS3. आप क्या क्या देखते हैं उसमें? यू विल सी करंट स्टेटस ऑफ दैट टॉपिक, if there are any reasonable and challenges to that area, if there are any government schemes that are there in of that area जो कि अभी applicable हैं, जो अभी चल रही हैं उस टॉपिक पे, एंड देन देयर विल बी द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस जो आप चेक करेंगे. फॉर एग्जांपल, एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है तो उसका ओवरऑल सिग्निफिकेंस इन द नेशन वाइड क्या रहता है, व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशंस टू द फार्मर. तो आप इस तरीके से, चाहे वो करंट स्टेटस हो, उस टॉपिक पे कुछ स्कीम्स हों जो कि प्रेवलेंट हो, या फिर कुछ चैलेंजेस हों और स्कोप एंड सिग्निफिकेंस हो, इन सब के आप कंसोलिडेटेड नोट्स बनाते हैं, आप पॉइंट्स प्रिपेयर करते हैं. यही पॉइंट्स जो हैं काम आते हैं अल्टीमेटली आपके आंसर राइटिंग में. फाइनली, फॉर एवरी टॉपिक व्हाट इज़ द मोस्ट क्रूशल थिंग इज़ कि एक वे फॉरवर्ड हर टॉपिक का होना चाहिए. अगर GS3 है, GS3 में आपके इश्यूज हो सकते हैं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन एंड problems of road network for farmers, or it can be marketing and a lack of it, which causes hindrance to a good price realization for the farmers. ऐसी हर चीज़ के लिए जो जो challenges हैं उनके लिए एक अच्छा वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ये बनाना नोट्स में ज़रूरी है. इस तरीके से आप कॉम्प्रहेंसिवली अपने स्टैटिक पोर्शन को कवर कर पाते हैं. Now coming to the second part of the mains preparation, which is your current affairs. Like I said, I was preparing and reading the newspapers the whole year, and from there I was also preparing the notes. And current affairs में what can also help is the monthly magazines that come out. उन मंथली मैगजीन्स में टॉपिक वाइज इशू, अगेन उसके चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, ये सब दिया होता है. तो ये आपको काफ़ी बेनिफिट कर सकते हैं. ऐसे में आप क्या करते हैं, आप दोनों चीज़ें देखते हैं. एक कि ऐसा कोई टॉपिक होगा जो ऑल टुगेदर न्यू होगा, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपने पहले कभी कवर नहीं की होगी, तो आप उसको एज इट इज़ अपनी बुकलेट से पढ़ सकते हैं. सेकेंड जो होता है वो होते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स, दे आर इन वोग ऑल द टाइम. इट कैन बी द इंटरनेशनल रिलेशंस, द इंडिया चाइना रिलेशनशिप, इट कैन बी द इंडिया रशिया रिलेशनशिप, इन द पॉलिटी इट कैन बी सेडिशन एंड topics like that. These are always in vogue and they keep coming back in news. तो ऐसे टॉपिक्स पे आपने ऑलरेडी कुछ ना कुछ जो है नोट्स पहले से बनाए हुए होंगे. तो इस ऐसे में जब आप करंट अफेयर्स की बुकलेट पढ़ते हैं तो उन बुकलेट से ऐसे कुछ अच्छे पॉइंट्स निकाल पाना जो कि मे बी आपने नोट्स में कवर नहीं किए हैं, वो आपका स्ट्रैटेजी रहता है. तो आप फॉर एग्जांपल, आई एम प्रिपेयरिंग माई नोट्स ऑन डेथ पेनल्टी. तो मुझे एक मंथली मैगजीन में एक जजमेंट मिल जाता है, जैसे कि शत्रुघ्न चौहान जजमेंट विच सेज दैट अनड्यू डिले अमाउंट्स टू टॉर्चर. अब ये एक सिंपल लाइन है एंड आप इसको लेंगे और अपने नोट्स में इंकॉर्पोरेट कर लेंगे, सो दैट व्हेन यू आर रिवाइजिंग यू रिवाइज दिस जजमेंट ऑल्सो. एंड इन द सिमिलर वे अ लॉट ऑफ फैक्ट्स, अ लॉट ऑफ जजमेंट्स आपको मिलते रहेंगे ओवर द टाइम इन द करंट अफेयर मंथली मैगजीन्स, और वो आप अपने नोट्स में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं. सो इन दिस वे आप अपने करंट अफेयर्स को और ज़्यादा होलिस्टिक बनाते हैं और आप उनको इस तरीके से बनाते हैं कि आपकी आंसर राइटिंग की क्वालिटी इम्प्रूव होती है. अगेन अब हम थर्ड टॉपिक पे आते हैं मेंस के, विच इज़ मॉक टेस्ट. लाइक इन प्रीलिम्स, इन मेंस ऑल्सो वन हैज़ टू गिव मॉक टेस्ट अगेन एंड अगेन. सो उसके लिए चाहे वो विजन IAS हो या कोई भी अकेडमी हो, वो अच्छे मॉक टेस्ट आपको ऑफर करेंगी. एंड द स्ट्रैटेजी इज़ कि आप जितनी ज़्यादा आंसर राइटिंग कर सकते हैं आप करिए, एंड देखिए कि वेदर यू आर अडेयरिंग टू द टाइम लिमिट और नॉट, क्योंकि आई थिंक मेंस में दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है. आपके आंसर की क्वालिटी जो कि आती है एक नोट्स अगर आपने ठीक से बनाए होते हैं तो, एंड दूसरा ये कि आप उन नोट्स को
प्रॉपरली अपने आंसर में रेप्लिकेट कर पाएँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप काफ़ी सारे मॉक टेस्ट दें और आप देखें कि आप हमेशा अपनी लिमिट, जो टाइम लिमिट है, उसे अडहेयर कर पा रहे हैं एंड अपने आंसर्स को विद इन दैट टाइम लिमिट कंप्लीट कर पा रहे हैं, एंड कीपिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर आंसर। सो दिस इज़ हाउ यू यूज़ द मॉक टेस्ट। और यही मॉक टेस्ट जब आप अपने कोचिंग सेंटर में देते हैं तो ये रिव्यू होके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई रिमेंबर ड्यूरिंग माई टाइम आई हैड द प्रॉब्लम ऑफ नॉट कीपिंग माई इंट्रोडक्शन in my answer crisp and precise. This was pointed out to me by such coaching centers जिनमें मैं अपने answers को submit करती थी. So I think from there I learned that yes, keeping the introduction crisp and precise really works in one's favor, क्योंकि जब आपका examiner आपके answer sheet देखता है, सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन देखता है। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन में इस तरीके से लिख पा रहे हैं कि आप उसको उस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं इन 4-5 लाइन्स, और आपको एक अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक की, वो रिफ्लेक्ट कर जाती है एक अच्छे इंट्रोडक्शन में। वो एक बार एग्जामिनर देख लेता है तो इट बिल्ड्स देयर कॉन्फिडेंस ऑल्सो कि द स्टूडेंट नोज व्हाट दे आर राइटिंग अबाउट। सो दैट वाज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एन इंट्रोडक्शन, अ गुड इंट्रोडक्शन दैट आई लर्न फ्रॉम मॉक टेस्ट। तो इस तरीके के कई सारे पर्सनल टू यू जो करेक्शंस आप कर सकते हैं इन योर आंसर राइटिंग, यू विल बी एबल टू गेट इट थ्रू मॉक टेस्ट। Now coming to the another part of mains preparation, which is why I chose botany as my optional subject because of my background in life sciences. अब ऑप्शनल कैसे चूज़ करना है या कौन सा चूज़ करना है, यूजुअली आपका खुद का कॉल होता है। ऑप्शनल ऐसा होना चाहिए विच एक्साइट्स यू, इट शुड बी समथिंग जो आप बार बार पढ़ने में आपको मज़ा आएगा, और आपका एक बेसिक अच्छा अंडरस्टैंडिंग एंड फाउंडेशन अगर उस ऑप्शन में होता है, इट ऑलवेज वर्क्स इन योर फेवर। तो अगर फॉर एग्जांपल आई हैव अ बैकग्राउंड इन लाइफ साइंसेज, then me choosing botany works in my favor because मैं हमेशा botany के core concept से somehow अपने graduation को link करके connect कर सकती हूँ, and for me that preparation is again more comprehensive in nature. So similarly, choose an optional that you connect with the most. A lot of people, they diversify and then they don't go for an optional which is related to their graduation or post graduation, and it is nothing to be worried about. I think ऐसा ऑप्शन होना चाहिए अगेन जिसे जब आप पढ़ते हैं तो आपको अच्छा लगता है उसे पढ़ने में, यू इन्जॉय द सब्जेक्ट. So this is the 4 areas that I wanted to talk about. It was a static portion, how to prepare notes. The second I talked about was the current affairs. Third was your mock test, and your fourth one was your optional. Now coming to the interview, I have prepared some notes for how to prepare for the interview. कुछ comprehensive चीज़ें जो मुझे लगी मेरे काम आई, वो I hope आप लोगों के काम आए. So first of all, इंटरव्यू के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी, that would be your DAF, which is basically your holy book. That is what you are going to refer again and again during your preparation for the interview. Why I say so is because almost everything that is going to be asked would be somehow in one way or the other connected to your DAF. Of course, there will be current affairs questions also, but that is something that everybody has to face. So the maximum portion of it in the interview which will be asked would be connected to your DAF. So now that we have established that there is immense importance of DAF, how to approach the interview preparation? First of all, there should of course be the static knowledge of yours जो कि आपके इंटरव्यू में आपको काम आएगी. ये स्टैटिक नॉलेज आपकी पॉलिटी की होती है, इंटरनेशनल रिलेशंस की होती है, आपके एनवायरनमेंट की होती है, कभी कभी बेसिक डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं. तो ऐसे सिनेरियो में वो स्टैटिक नॉलेज जो आपने मीन्स में गैदर की होती है, वो ही आप अपने इंटरव्यू में यूज़ करते हैं, एंड आपको वो काम आती है. यू कैन ऑलवेज रिकॉल द बेसिक डेफिनेशंस एज सिंपल एज समथिंग लाइक व्हाट इज़ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. It is an environment related question to what is the Keshwanand Bharti case. Things like that are often asked in the interview also. So that is a static portion.
और अगर वो आपने मेंस में तैयार कर रखा है तो आप ऑफ कोर्स उसको रेप्लिकेट इंटरव्यू में भी बुक कर सकते हैं। नाउ कम्स द करंट अफेयर्स। इंटरव्यू से पहले 5-6 महीने जो भी एवरीथिंग दैट इज़ पर्टिनेंट टू द GS यूजुअली आप उसके नोट्स बनाते रहिए। आई थिंक इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट दैट एक सेकेंड, यस, आई होप आई एम ऑडिबल, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम। Okay, yeah. So as I was saying that in the current affairs, what would be important is कि जो भी करंट अफेयर्स में न्यूज़ चल रही है, अगर आप उसका कॉम्प्रहेंसिव नोट बना पाएँ कि क्या न्यूज़ है, उसके क्या इश्यूज़ हैं, उसका क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करिए एंड छोटे पॉइंट्स रखिए, बिकॉज वन हैज़ टू रिमेंबर कि इंटरव्यू इज़ जस्ट गोइंग टू बी 30-35 minutes लॉन्ग, सो यू आर नॉट राइटिंग अ मेन्स आंसर, यू आर जस्ट गोइंग टू गिव 2 or 3 points। तो बेटर है जो सबसे अच्छे पॉइंट्स रहते हैं, सबसे मोस्ट पर्टिनेंट टू द टॉपिक इन क्वेश्चन, आप उनको नोट डाउन करें और उनको रिवाइज करें। अगेन इंटरव्यू से पहले आप न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ मस्ट, and be it the Hindu or the Indian Express, keep in touch with the newspaper, and from there only you will get all the material that is required for you to make those notes that I'm talking about. Again, ऐसा भी होगा कि कई सारे टॉपिक्स होंगे इन द करंट अफेयर्स विच वुड बी रेपिटेटिव इन नेचर, यू माइट ऑलरेडी हैव learned them during your means preparation. It can be something like an anti defection law, and कुछ पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा हो सकता है कि किसी ने कुछ एंटी डिफेक्शन मोशन चला हो, तो ये ऐसी चीज़ है जो कि आपने अपने प्रीलिम्स के टाइम पे भी पढ़ ली होती है, अपने मेंस के टाइम पे भी पढ़ ली होती है। अब ऐसी चीज़ को आप क्या करेंगे, आप अपने नोट्स जब बनाएंगे तो अपने स्टैटिक पोर्शन जो आपके पास पहले से जिनके नोट्स होंगे उन्हीं में से कंटेंट आप लेंगे। उसके अलावा आप क्या करेंगे कि उन नोट्स के साथ आपको जो न्यूज़पेपर में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स अच्छे मिल गए होंगे, जो कि इट कैन बी अ चैलेंज दैट इज़ प्रेजेंटली देयर, और इट कैन बी अ वे फॉरवर्ड दैट द editor is suggesting in the newspaper, you write those things down and आप उनके इस तरीके से नोट्स बना सकते हैं। Next thing in the interview which is very important is your home state, district, फादर एंड मदर का डिस्ट्रिक्ट जो होता है, इन सब चीज़ें आपको लगता होगा कि ये भी पूछ ली जाती हैं, तो इनको प्रिपेयर कैसे करना है, दैट इज़ अ क्वेश्चन दैट इज़ ऑफन देयर इन एवरीबडीज़ माइंड। तो चाहे वो आपका होम स्टेट हो या आपकी डिस्ट्रिक्ट हो, उसकी हिस्ट्री, उधर अभी प्रेजेंटली कुछ चैलेंजेस हैं, अगर वहाँ पे क्या स्कीम्स हैं, क्या काम चल रहा है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स अगर ये पता हो तो इट्स ऑलवेज गुड इफ़ द इंटरव्यूअर आस्क यू, यू विल बी इन अ वेरी गुड लाइट अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस को आंसर कर पाते हैं तो। अगेन आप अपने स्टेट के, फॉर एग्जांपल आई बिलोंग टू यूपी, सो आई शुड नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यूपी, बी इट इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, बी इट द स्कीम्स दैट आर prevalent, the major issues in my state, the major potentials of my state. So basically a proper SWOT analysis is what it is called, of the country, of the state is very important. SWOT, you mean it means strength, weakness, opportunities and threats. So this kind of a comprehensive preparation for your state is also required, because a lot of times आपके state से directly questions आ जाते हैं in your interview. Now when it comes to the interview, a lot of time the your background, be it your optional, your graduation, post graduation, all of these are asked. So my advice is that, for example, I have had my optional as botany and my background is microbiology and biotechnology. What I think मैंने जिस तरीके से preparation किया है, it's very important कि आपको जो basic definitions होती हैं अपने subject की, वो तो डेफिनेटली पता होनी चाहिए। इट्स अ मस्ट दैट यू शुड नो द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, क्योंकि इंटरव्यूअर बहुत ज़्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा। that is some detail that you only will know and you only can answer. What they want to see is that do you still have that basic understanding of your optional subject, do you have that basic understanding of your graduation subject, and for that those basic definitions should be remembered and आप उनको एक crisp and concise manner में
अपने इंटरव्यू में बोल पाएँ, दैट इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. Other than that, I think what is also, for example, any science student who has had a science background like me, मैंने अपने इंटरव्यू के लिए, चाहे वो बॉटनी हो या माइक्रोबायोलॉजी, उससे रिलेटेड कुछ भी पर्टिनेंट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एंड डिस्कवरीज हो रही हैं, तो मैंने वो भी लर्न किए हैं. जो रीसेंट नोबेल प्राइजेज़ में विनर्स रहे हैं, उनका क्या काम रहा है, वो भी मैंने पढ़ा है. इस तरीके से आपके सब्जेक्ट का जो करंट कुछ भी चल रहा होता है, वो भी आप प्रिपेयर करते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू. Then the second last thing in the interview preparation, I would say, is your hobbies, and it is no less important. It is equally important, I would say. चाहे जैसे for example मेरा hobbies had been dancing and my exposure to some level of modeling during my graduation and post graduation. So at that time मैंने जो भी काम किया, मेरा क्या एक्सपोजर रहा, व्हाट आई हैव लर्नड, इन व्हाट इंडस्ट्रीज स्पेसिफिकली आई हैव वर्कड इन, ये सब चीज़ें. और other than that, the static portion of such subjects also, for example, what is the history of dance, who was the first choreographer, and what is the difference between dance and choreography, as little as this, ये भी अगर पता हो, तो when an interviewer asks you समथिंग अबाउट योर हॉबी, इससे पता चलता है कि आप अपनी हॉबी को बहुत डेप्थ में समझते हैं, एंड यू एक्चुअली आर पैशनेटली फॉलोइंग इट. सो इसके लिए आप अपने हॉबी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते रहते हैं, उन पे 1-2 लाइन का एक आंसर रेडी रखना हमेशा फिजिबल रहता है. इट रियली हेल्प्स यू ड्यूरिंग योर इंटरव्यू. And the last thing that I would want to cover in the interview preparation is, for example, there is one category of the prizes that you may have won, some exposure that you may have got, any leadership position that you may have been in. So ऐसे सारे mentions जो आप करते हैं अपने DAF में, उन mentions के बारे में आप कुछ बोल पाएँ व्हेन आस्क्ड कि अच्छा आपको ये प्राइज़ मिला था, तो ये क्यों मिला था, आपने इस पे क्या काम किया. तो दैट बैकग्राउंड ऑफ इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जब आपसे पूछे तो कोई भी पार्ट आपके डैफ का फेक नहीं लगना चाहिए. इट शुड नॉट अपीयर that you have just written it down in your DAF for the sake of it. It should really appear कि yes, you have proper knowledge of whatever is mentioned in your DAF, and you have had proper exposure to those things. So now this is the interview preparation. Finally, there are some basic questions that a lot of aspirants always ask me. I'm gonna answer them on my own. तो there are some questions like, first of all, the choice of optional. तो choice of optional के लिए I would say कि again it is somebody's call entirely कि it's your discretion. Some people are more comfortable in their background, which is a subject that you have taken during your graduation or post graduation, and a lot of people are more comfortable in choosing that only as an option, which is also the case with me. So I think for those people जिन्हें लगता है कि मैं अपने graduation subject में ही justice कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, definitely go for that kind of an optional. Again, a lot of people who have had a different graduation subject, but they completely not go for it, and they'll go for a completely new subject. For example, a lot of people take up Hindi literature and sociology, and these are the subjects that are quite in vogue, and a lot of people, they don't even have their graduation background in it, but they still go for it because for a lot of people these are subjects that they have an interest in, and if that is the case with you, then definitely go for such a subject. Finally, a lot of people also ask me about my motivation, like why I chose civil services. I think I have a lot of times I have covered this question, but I would again then talk about this. It's majorly because of my parents. My dad, he was a senior scientific advisor in the renewable energy ministry,
My mom was a banker. She was an AGM in State Bank of India. So somehow I always saw them working in one way or the other in the government sphere, and I really liked that setup. I liked how hardworking they were. It was really inspirational to me, and somehow from very early on I had this vision that if not research, I would go for civil services. The next question that I'm often asked is how important are previous year questions? And I would like to say that previous year questions are basically your key. Sometimes people say, what is the shortcut to UPSC? Like, why it is so difficult? But I think when you see the previous year questions, it really narrows down your preparation, and it really helps you to focus on the things that are the most important during the preparation. So the question banks, स्पेशली आपको जैसे आपके सब्जेक्ट के ऑप्शनल के क्वेश्चन बैंक मिल जाते हैं, तो उन्हें टॉपिक वाइज डिवाइड करिए. देन ट्राई टू फिगर आउट कि किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. ऑप्शनल में आपको दिख जाता है कि आपको एक सब्जेक्ट में अपने आप को कितना लिमिट करना है या कितना एक्सपैंड करना है एज पर द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड in the main examination. Similarly, it is applicable to every place, be it the prelims or the 9 papers of mains. आपको आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि ओके इस डेप्थ में क्वेश्चन आ जाता है, या अगर ये सब्जेक्ट है इसमें डायरेक्टली इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो इट्स अ जेन्युइनली अ गुड गाइड द क्वेश्चन बैंक्स. तो उन्हें बार बार रेफ़र करिए, एंड दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन नोट्स मेकिंग, क्योंकि क्वेश्चन से आपको पता चलता है कि आपको नोट्स किस लेवल तक जाने हैं, एक सब्जेक्ट में आपको कितनी डेप्थ में जाके लिखना है, वो भी आपको पता चल जाता है. तो ड्यूरिंग नोट्स मेकिंग ऑल्सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन बैंक्स को बार बार रेफ़र करिए. Again, there is one question that is often asked, which is your how important is coaching? So I would say that coaching is not some kind of a magic bullet or an elixir that will just make you crack the exam in one go. Coaching definitely helps in setting up a foundation for a person, for somebody who's in the science background, especially like me, जिन्होंने अपने 11th 12th में geography, history ये ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े होंगे. जब आप कोचिंग में जाते हैं और क्लासेस लेते हैं तो एक अच्छा फाउंडेशन सेट होता है डेफिनेटली. But having said that, it's very important that one starts their self-study for UPSC as soon as possible, and it should comprise of newspaper reading, notes making, giving a lot of mock tests, and ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी पैरेलली चलनी चाहिए. So a lot of people who can't go to coaching for varied reasons, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि like I said, coaching is not मैजिक बुलेट. अगर आप नहीं भी लेते हैं तो देर इज़ ऑलवेज NCERT, जिससे आप अपना फाउंडेशन सेट कर सकते हैं. एंड देन अगेन आपके पास कोर बुक्स होती हैं UPSC की, जैसे कि लक्ष्मीकांत, श्री राम, शंकर. जब आप इन्हें पढ़ते हैं तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग खुद डेवलप होती है. Newspapers के लिए I have already talked about. Hindu and Indian Express are really good newspapers. One can always refer to those during the entire preparation time. Finally, the number of hours to give for your UPSC preparation. I think between 10 to 11 hours every day is a good amount of time to give for UPSC preparation. और आप ये नोटिस करेंगे कि it is not that difficult when you make a schedule. तब आपसे ये 10-11 घंटे आप अपने 24 आवर्स में से निकाल ही पाएंगे. एंड डेफिनेटली इसको 10-11 आवर्स ऑफ डेडिकेटेड स्टडिंग can really help you to cover not only your GS, your optional, but your mocks also, and can really give you make you be in a good position to crack the examination. लास्ट 2 चीज़ें जो मैं कवर करूँगी बिफोर आई टेक अप एनी क्वेश्चंस इज़ द मोटिवेशन factor. What is it that keeps one going during the UPSC preparation? वो क्या फैक्टर रहते हैं? तो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट वुड बी कि आप टारगेट्स बनाइए.
जब आप टारगेट्स बनाते हैं एंड व्हेन यू आर एबल टू फिनिश देम, सम नॉट 100% ऑल द टाइम बट अ लॉट ऑफ टाइम्स यू कैन कंप्लीट 60 और 70% ऑफ योर टारगेट्स। आई थिंक ऐसे सिचुएशन में आपको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट फील होता है कि आज मैंने ये 10 चीज़ें लिखी थी कि मैं कर सकता हूँ एंड मैंने उनमें से 8 कर ली। तो वो एक फीलिंग आती है कि यस, मतलब ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इट इज़ वेल विद इन माई रीच। एंड अगर मैं सीरियसली इससे मैं और मेहनत करता जाऊँ, लगा रहूँ, तो आई कैन डेफिनेटली अचीव माई गोल्स, बी इट कंप्लीटिंग माई GS और कंप्लीटिंग माई ऑप्शनल। तो ये जो मोटिवेशन आती है, आई थिंक विद अ लॉट ऑफ perseverance, discipline and setting those targets, and once you complete those targets you definitely feel a sense of accomplishment that I have mentioned. And finally, after saying all of this, it may seem a lot of information in half an hour, but I think यही चीज़ें आसान लगने लगती हैं जब आप कॉन्स्टेंटली रिविज़न करते हैं। सो रिविज़न वुड बी योर की। अगर आप बार बार रिविज़न करेंगे, वो सेम सब्जेक्ट जो है वो आपको कम डिफ़िकल्ट लगेगा। इट विल फील दैट यू हैव अ बेटर ग्रास्प ऑन दैट सब्जेक्ट। एंड कोई भी एक बार या 2 बार रीडिंग करने से वो क्लैरिटी कभी भी नहीं आ सकती, बट जैसे ही आप उस किताब को तीसरी या चौथी बार पढ़ते हैं, यू कैन स्टार्ट मेकिंग सेंस ऑफ द थिंग्स कि ओके, दिस इज़ व्हाट द writer is trying to tell me. So revision is always the key in UPSC preparation, and it should not be taken for granted ever. Now it's already been half an hour and I'll take some questions. If there is an question that I have somehow missed, I will take that up. Okay. Oh, there is one question. About spelling mistakes and sentence structure, how to remove this problem. Manish has asked this question. I think agar you are facing the problem with the structuring your sentences, अगेन इसमें दोनों चीज़ें लगेंगी। अ लॉट ऑफ जब आप इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड बनाने की कोशिश करते हैं, रीडिंग ऑलवेज हेल्प्स। एंड यू रीड द न्यूज़पेपर, यू अंडरस्टैंड द नुआंस ऑफ दैट लैंग्वेज। सो रीडिंग इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट। जितना आप रीड करते हैं चीज़ों को, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग में काम आने लगता है। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज़ ऑलवेज कि आप जितना लिखेंगे, आप जब पहली बार लिखते हैं आप रियलाइज़ करेंगे, एंड इट हैज़ हैपन टू मी ऑल्सो, कि माई सेंटेंसेज वुड बी वेरी लॉन्ग इन नेचर, बट विद कॉन्स्टेंट आंसर राइटिंग आई रियलाइज दैट ओके, आई कैन कंसाइज इट अप, I can make it more precise in nature. So both the things of reading and then practicing your writing skills is very important. Yes, somebody has written that while reading editorial section of the Hindu, I find its vocabulary very hard and it's very time consuming to search for its meaning, then reread it again. First of all, there are other newspapers also. Hindu definitely is a very good newspaper when it comes to the getting a hold over the English language. Their sentence structuring is very nice and it really helps in the overall vocabulary building. But for a lot of people it may seem like quite a task. It sometimes can feel कि थोड़ा सा ज़्यादा difficult है. In such a scenario, there are different other newspapers like the Indian Express, the Times of India. Their language might be easy and अल्टीमेटली एम होना चाहिए कि क्या चल रहा है दुनिया में, वो आपको समझ आना चाहिए। और अगर आपका सेंटेंस ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट इन नेचर होना चाहिए आपके खुद के आंसर में, इन सिंपल वर्ड्स इफ़ यू कैन राइट द आंसर एंड यू नो कवर ऑल द पॉइंट्स, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द UPSC, नॉट अ कमांड ओवर द लैंग्वेज. So next question, how to manage your study and preparation time. Like I said, it's important to give 10 to 11 hours. Definitely अगर आप शुरू से ही टाइम दे रहे होंगे, उतना ही धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपका बर्डन लास्ट मोमेंट पे आते हुए कम हो जाएगा, क्योंकि
आपके नोट ज़्यादा कंसाइज़ हो जाएंगे, आप उन्हीं पॉइंट्स को काफ़ी बार रिवाइज़ कर चुके होंगे। तो डेफ़िनेटली टू मेक इट मोर ईज़ियर फॉर योर ओन सेल्फ, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट गिविंग टाइम फ्रॉम मच बिफोर हैंड। आप लास्ट मिनट पे ना आके करें, तो एक उसके लिए ज़रूरी है टाइम टेबल ज़रूर बनाइए। Okay, somebody has asked about different plan A, plan B. If I execute the plan B at first before choosing UPSC, then go with online coaching will be better. See, my journey has been such that I gave the UGC JRF NET examination and I had cleared it also. At a very early stage of preparation. I think I had just started the preparation, and by that time I had already cleared. So one path for me was always clear, that I can always go for research and do my PhD. And बट ऐसा होता है कि जब आप अपने प्लान बी पे भी फोकस कर रहे हैं एंड प्लान ए भी साथ में एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो टाइम, देयर इज़ ओनली 24 आवर्स इन अ डे, आप कैसे सब कुछ मैनेज करेंगे? तो समटाइम्स आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अगर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो आप अपना फुल डेडिकेशन 1-1.5 साल का दे के ज़रूर देख सकते हैं। लॉट ऑफ टाइम इज़ वेरी वर्थ इट कि आप अपना 1 ईयर, जो 1 कोर ईयर है ऑफ प्रिपरेशन, वो सिंपली सिर्फ यूपीएससी को दें। In the scheme of things, it is a good bet for a lot of people. I understand that for a lot of people, unke situations are not so conducive to just devote one entire year for preparation. But बहुत सारे टॉपर्स ने अपना टाइम सेट असाइड करके 1-1.5 साल दिया है प्रिपरेशन को, और इतना लगता भी है। तो अगर आप ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली हो सकता है, बट देन देर आर ऑलवेज पीपल हु हैव हैड अ जॉब, who have prepared for the exam alongside that job, who have given their weekdays, and even that is possible. Albeit ये होगा कि आप in a day rather than giving 10 to 11 hours, you will be just giving 4 to 5 hours. But remember, जो 4 या 5 घंटे आप देंगे अपनी प्रिपरेशन को, उसको फुल डेडिकेशन के साथ दीजिए, तब ये पॉसिबल ज़रूर है. A lot of these questions are related to time management only. I think I have covered this amply enough. And लास्ट मिनट पे रिवीजन के लिए अगेन आई हैव सेड दैट आप जब शुरू से नोट्स बनाने स्टार्ट कर चुके होते हैं, वो नोट्स जब आप कंसाइज कर लेते हैं, तो उन्हें ही लास्ट मिनट पे रिवाइज़ करना इज़ क्वाइट पॉसिबल. आप उन्हें अच्छे से रिवाइज़ कर पाते हैं. अगर आप एक पूरी किताब को लास्ट मिनट में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल ऑब्वियसली. तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस किताब के आपके पास कंसाइज नोट्स रहें. वन मोर क्वेश्चन इज़ दैट मैम प्रीवियस ईयर पेपर कैसे पढ़ें अपने, ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ. व्हेन यू विल सी दिस वीडियो अगेन, यू विल बी एबल टू गेट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से. फाइनली, Hindi medium strategy, though I'm sorry I'll not be able to answer that question, but there are so many other toppers who have done marvelously well in Hindi medium, and I think they will be able to help you. I think more or less I've covered all of these questions. If there is any more question, one can ask me here. अगेन किसी ने यही पूछा है कि बिफोर अपेयरिंग फॉर द प्रीलिम्स हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन नीड्स टू रिवाइज द बुक. जैसे मैंने लक्ष्मीकांत के कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे ऑफ दोज थिंग्स इन लक्ष्मीकांत विच आर वेरी हार्ड टू रिमेंबर. कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो मुझे ही याद नहीं हो पा रहे होते हैं. जब ऐसी चीज़ों के आप नोट्स बना लेते हैं तो लास्ट मिनट पे आप सिर्फ उन्हें रिवाइज़ करते हैं. उससे ये होता है कि वैसे ओवरऑल तो आपको चीज़ें याद ही हैं, पर वो जो कुछ क्रूशियल एरियाज दैट यू माइट बी फॉरगेटिंग अगेन एंड अगेन, वो आपको याद रह जाते हैं. सो दैट इज़ हाउ ऑल्सो यू डू द लास्ट मिनट रिविजन. I think now I have covered almost all the questions, and rest अगर किसी ने अच्छा कहाँ से मेंस का कंटेंट कवर करें, उसके लिए आप टॉपिक ऑनलाइन आपको काफ़ी सारे कोचिंग मटेरियल मिल जाएगा फॉर एवरी टॉपिक. व्हाट यू नीड इज़ कि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करना है.
गैदर करिए बेशक, बट उसे कम कम करने की कोशिश करिए। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड कि जब आप मेंस करें का आंसर बनाने की कोशिश करते हैं तो हर टॉपिक का आपको स्कोप, चैलेंजेस, करंट स्टेटस, उससे रिलेटेड स्कीम्स, उसका वे फॉरवर्ड, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और उसके लिए आप कंसाइज नोट्स बनाते हैं। So I think I have covered everything now. I think I'll be logging off, and yes, I think all the questions are covered. I hope this video was of some help to you all, and I'd like to get in touch again. अगर कभी किसी को और कोई doubt होगा तो definitely I would love to clear those doubts. And again, a very best of luck and best wishes from my side to everybody who is preparing for this examination. I think UPSC के लिए अगर आप एक डेडिकेशन जब दिखाते हैं with perseverance and discipline and hard work, and these are some non-negotiable traits to have as an aspirant. If you have those, then this exam is well within your reach, and there might be moments where you will feel disheartened, but those are the moments when you get up and start again. ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो ओवर द टाइम आप करते करते समझ जाते हैं कि डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। कभी कभी डिफ़िकल्ट डेज़ आएंगे, बट उन्हें ओवरकम करना भी हम सीख लेते हैं, एंड अल्टीमेटली हम ऐसी जॉब में जा रहे हैं जो आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप हाई रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे रह सकें। तो उसके लिए एक तरीके से आप प्रिपेयर हो रहे हैं अभी से, जब से आप ये एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन। तो हैव दैट थिंग इन योर माइंड व्हेन you are preparing for the examination. And once again, best of luck to everyone. My best wishes to all, and maybe I'll connect again to clear any more doubts that are there. And yes, thank you and good evening.